اس ملک ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بہت مشہور شخصیت ڈاکٹر سید محمد امین میاں برکاتی صاحب کی ہے۔ مدتوں تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ وابستہ رہے۔ اپنا ذاتی ادارہ انہوں نے قائم کیا البرکات ایجوکیشنل سوسائٹی علی گڑھ، اور کئی مقامات پہ الحمدللہ کامیابی سے جاری و ساری ہے۔ آپ کے ایک چھوٹے صاحبزادے ہیں سید محمد اشرف صاحب۔ انڈین سول سروسز کامیاب کرنے کے بعد انہوں نے IRS جوائن کیا۔ کلکتہ، لکھنؤ، بمبئی ایسے بڑے میٹروپولیٹن سٹیز میں چیف انکم ٹیکس کمشنر کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے آج بھی اسی شعبے سے وابستہ ہیں۔ سینئر بیوروکریٹ، انتہائی ایماندار سینئر بیوروکریٹس کی فہرست میں ایک سر فہرست نام سید محمد اشرف صاحب کا ہے۔ ان دونوں کا جو تعلق ہے وہ بلگرام جو ایک مقام ہے اتر پردیش کا مشہور خطہ ہے ماہریرا کی خانقاہ ماہریرا سے ان کا تعلق ہے، اور خاندانی اعتبار سے نسب نامہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ اس خاندان نے خانقاہی نظام کو ساتھ میں رکھتے ہوئے اسلام کی شریعت کو پوری پابندی سے بروئے کار لاتے ہوئے عصری تعلیم کے فروغ کے لیے ایک نعرہ دیا تھا کہ آدھی روٹی کھائیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس نعرے کا ایک اثر عطاء الرحمن نوری بھی ہے۔ اسی خانقاہ سے بے پناہ عشق اور عقیدت رکھنے والے آج کے اس جلسے کے صدر محترم نہ صرف خانقاہ ماہریرا سے بلکہ تمام سلاسل جو سلسلہ قادریہ سے جتنی شاخیں نکلی پوری دنیا میں ان سب کی خانقاہیں ہیں، سجادگان ہیں، مشائخین ہیں، سادات ہیں، سب کے لیے عقیدت اور احترام کا جذبہ رکھنے والے۔ مجھے افتخار عارف کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ زمانے میں جو ہماشکتہ سامانوں کی شہرت ہے یہ سب آل محمد کی غلامی کی بدولت ہے۔ انتہائی ادب کے ساتھ الحاج سید محمد امین القادری صاحب خطبہ صدارت کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، استقبال کیجئے، ان کے خیالات سماعت کیجئے۔ جناب الحاج سید محمد امین القادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت اچھی گفتگو ہو چکی ہے، اور اب اتنی اچھی گفتگو کے بعد اب کوئی گفتگو، میں تو ایک طالب علم ہوں، اساتذہ کی گفتگو کے بعد میں نے گفتگو کرنا ایسا ہی ہوگا کہ جیسے گاجر کھانے کے بعد منہ میٹھا ہو جائے، پھر اس کا اوپر کا جو ہرا حصہ جو کچا ہوتا ہے اس کو چبانے کے بعد جو منہ کا ذائقہ ہوتا ہے کہیں وہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے، اس لیے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، صرف اپنے اساتذہ کی دعائیں لینے کے لیے چند جملے بول کر اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو آج کی محفل رکھی گئی ہے، برادر عزیز عطاء الرحمن نوری صاحب کی تحریک پر ہمارے احباب نے جو یہ محفل منعقد کی ہے، فروغ علم اور جدید ٹیکنالوجی، اصل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو عالمی سطح پر ایک انقلاب برپا کیا تھا، وہ انقلاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی بنیاد پہ برپا فرمایا تھا۔ آپ دنیا کے جتنے مذاہب دیکھ لیں، ان میں علم کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اسلام میں علم کی عظمت اور حیثیت ہے۔ اسلام کی سب سے عظیم ترین کتاب جو اللہ کی آخری کتاب ہے، جسے قرآن کہتے ہیں،
اللہ तबारक व तआला ने उसकी सबसे पहली जो आयत करीमा नाजिल फरमाई, न वो नमाज के मुतालिक है, न वो रोज़े के मुतालिक है, न वो हज के मुतालिक है, न वो ज़कात के मुतालिक है, न वो सदक़े खैरात के मुतालिक है, बल्कि कुरान की पहली आयत ईमान लाने का भी हुक्म नहीं देती, ईमान पर भी वो बहस नहीं करती, वो गुफ्तगू करती है तालीम के हवाले से। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से। बस इसी पर गुफ्तगू में ख़त्म करूँगा क्योंकि बहुत देर से हम लोग सुन रहे हैं। जो इस वक्त इंटरनेट के गलत इस्तेमाल में हमारे नौजवान तबाही के दहाने पर पहुंच रहे हैं, चूँकि हम लोग आवाम से वाबस्ता रहते हैं, मिंबर व महराब की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है, तो लोग हम तक ये बातें लाते हैं कि इंटरनेट के ज़रिए से लोग ज़िना के अड्डों की तरफ बढ़ रहे हैं, इंटरनेट की वजह से लोग जो है वो बदनज़री का शिकार हो रहे हैं, इंटरनेट की वजह से लोग जो है वो आवारगी और ज़हनी अय्याशियों के अंदर मसरूफ़ हैं। गोया के गुनाह करने का लोगों ने एक मुहज़्ज़ब तरीका इख्तियार किया है कि अगर वो लोग रास्तों में गुनाह करेंगे तो बदनाम होंगे, तो वो सर के नीचे तकिया लगा के नर्म गद्दों पर हाथ में मोबाइल लेकर यूट्यूब पर ज़िना के मनाज़िर और खुदा जाने क्या क्या देखते हैं। ऐसे वक्त में अपनी कौम को सिर्फ एक पैगाम देना है कि इस्लाम का जो तालीमी नज़रिया है हम उसको आम करना चाहते हैं। तालीम के नाम पे बहुत इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन इस्लामी तालीमी नज़रिए के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। इसी वजह से जो है वो दुनिया के अंदर बदनज़मी पैदा हो रही है। तालीम है लेकिन इस्लामी नज़रिया तालीम नहीं है। तो इस्लामी नज़रिए तालीम के साथ हम तालीम को फ़रोग़ देना चाहते हैं। अल्लाह ने जो पहली आयत अपने महबूब पे नाजिल फरमाई, सब जानते हैं सीरत का वो अजीम तरीन वाक़या, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे इक़रा, उन्होंने पहले इतना कहा इक़रा पढ़िए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना बिकारी, बहुत अच्छे लोग ज़बानदार हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता, मैं पढ़ने वाला नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया अल्लाह आलम, मुझे इल्म नहीं है, ये नहीं फरमाया, मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। फिर उसके बाद दोबारा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इक़रा पढ़िए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। हालांकि इसका तर्जुमा कभी कभी खुतबा मुकर्रिरीन लाशऊरी तौर पे, मेरा उस्ताद ज़न कहता है लाशऊरी तौर पे वो ये कह देते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता। हालांकि माना बेकारी का मतलब कभी ये नहीं होता कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर कहा तीसरी मरतबा इक़रा पढ़िए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फिर कहा माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। फिर बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, आगे उसकी शरह करते हुए हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको दबाया, भींचा, और फिर जिब्रील पीछे हट गए। फिर दूसरी मरतबा दबाया और फिर वो पीछे हट गए। तीसरी मरतबा दबाया फिर पीछे हट गए। थोड़ा समय अब यहाँ चूंकि हदीस की शरह करने लगा हूँ तो आपको थोड़ा सा वक्त लूंगा। हालांकि मुझे पता है महफिल हमारी थक चुकी है और थकाने के बाद फिर अगर मैं गुफ्तगू तवील करूँ तो थकने के बाद ये पक ना जाए, तो इसलिए मैं आपको थके हुए लोगों को पकाना नहीं चाहता। लेकिन चूंकि हमारे असाज़ा की मैंने दुआ लेनी है इन बुजुर्गों की, लोग ये कहते हैं कभी कभी लाशऊरी तौर पे कि हुजूर को दबाया अल्लाह के नबी को जिब्रील ने और जिब्रील पीछे हट गए। आप देखिए जिब्रील वो फरिश्ता है जिसके 70,000 पर है, अगर वो सिर्फ 2 पर फैला दे तो पूरी कायनात उसके परों के नीचे आ जाए। लेकिन जिब्रील हुजूर को दबाते हैं, हुजूर नहीं थकते, जिब्रील थकते। क्योंकि अगर हुजूर थक जाते, एक ही बंदा जिसको दबाया जा रहा है वो थक जाए तो फिर उसको दोबारा दबाने की जरूरत पेश नहीं आती, वो तो थक के बैठ गया है ना, अब उसको क्यों कोई दबाएगा। तो पता चला आदमी एक के बाद दूसरी है, दूसरी के बाद तीसरी मर्तबा उस काम को इसलिए दोहराता है कि वो उस काम में कामयाब नहीं हो पाता। तो ये जिब्रील का 3-3 मर्तबा दबाना इसलिए है कि हुजूर को दबाकर जिब्रील थक रहे थे, इसलिए पीछे हट गए थे।
अब आप बताएं जिसकी शान ये हो वो ये कैसे कह सकता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यूं कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया। खलकल इंसाना मिन अलक। लोग कहते हैं साइंस साइंस साइंस, और साइंस से इसने कहा और उसका वो नजरिया उसका वो नजरिया। अभी तो साइंसी उलूम के माहिरीन पैदा नहीं हुए थे। खलकल इंसाना मिन अलक, अल्लाह ने इंसान को खून की फटक से पैदा किया। ये विलादती इंसान का फलसफा सबसे पहले कुरान बयान कर रहा है, सबसे पहले मेरे रब ने बयान फरमाया है। और साइंसी उलूम के सोते हो, कोई उलूम के सोते हो, वो तो फूटते कुरान मुकद्दस से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कहा कि अपने रब के नाम से पढ़िए, तो हुजूर ने फिर पढ़ना शुरू किया। बस बात इतनी है कि ये इल्म हो या टेक्नोलॉजी हो, ये इंसान को गुमराह इसलिए कर रहे हैं कि हम जब उस पर बैठते हैं तो रब के नाम के साथ नहीं बैठते। बस एक तसव्वुर ये देना है कि अगर यूट्यूब पर बैठने वाला खशियत रब्बानी को लेकर के बैठेगा तो फिर वो ज़िना के मनाजिर नहीं देखेगा, फिर वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कौम को तरक्की की राह पर ले जाने का ख्वाब देखेगा। असल में दिल में खशियत रब्बानी नहीं है, और वो इल्म कतन फायदा नहीं देता जिसके साथ अल्लाह की खशियत ना हो। अभी सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे कि ये अहले जुब्बा व दस्तार को कैसे सूझी कि वो ये काम करें। दरअसल मुल्ला और मिस्टर का फर्क तो बाद में शुरू हुआ। वो कौन सा काम है जो अहले जुब्बा व दस्तार ने नहीं किया है। आजादी की तहरीक से लेकर और फिर हिंदुस्तान पर जो है वो सदियों साल हुकूमत करने के मामलात को देख लें, सारे काम तो अहले जुब्बा व दस्तार ने किया है। लेकिन ये बात और है कि बाद में अंग्रेजों ने मुल्ला और मिस्टर को जो है वो दो खानों में तकसीम कर दिया, वरना जो मुल्ला था वही मिस्टर था, जो मिस्टर था वही मुल्ला था। हज़रत अल्लामा फजल खैराबादी ज़ोहर की नमाज से पहले जज की हैसियत से कोर्ट में फैसले करते थे, और ज़ोहर की अजान होती थी तो वहां से उतर करके नमाज पढ़ाने वाला भी वही फजल हक नजर आता। तो ये जो नूरी एकेडमी की कोशिश है, सुन्नी दावत इस्लामी और हिरा इंग्लिश स्कूल की कोशिश है, वो यही है कि हम फिर 100 साल पुराना दौर वापस लाना चाहते हैं। वो दौर फिर वापस लाना चाहते हैं कि जो अदालत का जज हो वही मस्जिद का इमाम भी हो। तो जो सूरत हाल का दुखड़ा यहाँ रोया गया है, इंशाअल्लाह ये सूरत हाल पैदा नहीं होगी। इसीलिए ये महफिल का इनेकाद है, और उसी के कड़ी है बिरादर अताउर रहमान नूरी का ये एक उनके जो लेक्चर है और उनकी जो तकरीरें हैं और उनके जो मलफूजात हैं, वो नूरी एकेडमी के ज़रिए से जो नूरी यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है, इससे यही हम फिक्र देना चाहते हैं। और मैं ये बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हिरा इंग्लिश स्कूल 8-10 साल पहले जो कायम हुई है, मैं अपने सीनियर असातिज़ा से गुजारिश करता हूँ कि और दावत भी देता हूँ कि आप ज़हमत फरमाएं, तशरीफ़ लाएं, हमारी रहनुमाई फरमाएं। एक एक का नाम लेकर गुफ्तगू शुरू करनी थी, लेकिन वक्त ने इतनी इजाज़त नहीं दी कि मैं अपने अजीम असातिज़ा का नाम लेता। बस उनकी नज़र एक शेर कर देता हूँ, हालांकि मैं कोई शायर नहीं हूँ, अगर गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ये बज़्म मैं है जामे जम नहीं, ये बज़्म मैं है जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अताउर रहमान नूरी को मज़ीद दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए, और फ़रोग़ इल्म के लिए जो कोशिशें की जा रही है अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी व कामरानी नसीब फरमाए। और अल्लाह वो दिन हमें फिर दिखाए कि जो तरावी पढ़ाने वाला मस्जिद का इमाम हो, वो किसी दवाखाने का डॉक्टर भी हो, वो किसी स्कूल का प्रोफेसर भी हो, वो किसी कॉलेज का प्रोफेसर भी हो, और वो किसी स्कूल का प्रिंसिपल भी हो। आज बहुत हालात ये हो गए हैं कि हमने दीन और दुनिया को अलग अलग खानों में तकसीम कर दिया है, जबकि दीन और दुनिया दोनों अलग अलग नहीं है। बल्कि आखिर में अपनी गुफ्तगू को ये पैगाम देते हुए ख़त्म करूँ, जिसकी दुनिया बेहतर होगी आखिरत भी सिर्फ उसी की बेहतर होगी। अगर आखिरत की कामयाबी का इन्हिसार दुनिया पर है, अद्दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ जो बोएंगे वहाँ पाएंगे। और अल्लाह ने पहले दुनिया मांगने का हुक्म दिया है, उसके बाद आखिरत मांगने का हुक्म दिया है, क्योंकि दुनिया अच्छी होगी तब आखिरत अच्छी होगी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना,
پہلے دنیا کا سوال ہے پھر آخرت کا سوال ہے. اس لیے ہم دنیا کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, اسی پر آخرت کا ڈیپینڈ ہوگا, اسی پر آخرت کا معیار ہوگا, اسی پر آخرت کا انحصار ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو مقبول فرمائے, منظور فرمائے. اور کوئی گفتگو اب بے ادبی سے بہت قریب ہے, اساتذہ کی گفتگو کے بعد میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ صدارت پیش کر رہے تھے حضرت سید محمد امین القادری صاحب. ایک شعر پڑھا انہوں نے جس میں جام جام اور مائے کا تذکرہ تھا, اور آخری مصرع تھا اس کا کہ یہاں کوئی کسی سے کم نہیں. تو اس سے پہلے کہ رسم شکریہ کے لیے قاری عبدالسلام صاحب یہاں تشریف لائیں, مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, وہ سنا دیتا ہوں اور میں اپنی جگہ لوں گا. ہم تو جاتے ہیں میقدے سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. قاری نور محمد صاحب رسم شکریہ ادا کرنے کے لیے جلسہ ختم ہونے کا نہیں اعلان کریں گے, یہ ملتوی ہونے کا اعلان کریں گے. ویسے دوسرا شعر بھی یاد آ گیا آپ کے آنے تک, جلیل مانک پور ظہیر مانک پوری نے کہا تھا کہ جاتے ہیں خدا